years back, I was totally a different person. Lost, insecure, underconfident, and whatnot. Have you ever looked in mirror and say that this is not who I am? I have. So hey guys, welcome back to my channel. It's Muskan Tiwari. So today we are going to discuss something very major, something very personal. So I know this video is very different from what I upload on my channel, but this video is very important to the people who are still struggling to overcome something or to be themselves. So I'm here to share my story, how I transferred myself from this to this. And I'm not only talking about appearance, I'm talking about the whole me. Confident, bold, classy, elegant, and know how to talk. So let's start our video without wasting any time, and please do watch this video because this video might change something that you are trying to change. So let's start. I've written everything that I have to share with you all, and I'm going to make this video in Hindi and English so people with language barrier can also get what I'm saying. So yeah, but I am a very good student from childhood, like a 90, 95, 96, 97 wali student to me. And I'm not flexing, I'm just stating the facts. So when I was in class 4th, my father decided to change my school to another school basically. तो जब मैंने फिफ्थ एंट्रेंस टेस्ट दिया तो द प्रिंसिपल सेड दैट या शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इफ यू वांट देन आई कैन ट्रांसफर हर फ्रॉम 4th to 6th and my father said okay, she can handle that. So I went to that school in class 6 and after changing school, you know कि थोड़ा सा पहले मैं बहुत फेमिलियर थी उस स्कूल से, नर्सरी से उसी स्कूल में पढ़ी थी. एंड जब मैं इस स्कूल में आई, मैं थोड़ी सी अभी भी जैसी थोड़ी फ्रेंडशिप वाली रखने वाली वैसी हूँ ना, तभी भी वैसी ही थी. अंडर कॉन्फिडेंट थी, इनसिक्योर थी, वो बात अलग है. सो देन मैं उस स्कूल में गई एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो लाइक पहले से स्कूल में उस पढ़े होते हैं, वो ग्रुप था. And I used to dance also because dance was my hobby and I love dancing. Still I love dancing. So वहाँ पे ना सैटरडे को क्लासेस होते थे डांस के, तो वहाँ पे मैं करती थी. एंड देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम दैट ग्रुप ओनली जो हर डांस में सेंटर में रहती थी. बट आई यूज टू डांस लाइक आई एम अ गुड डांसर. सो द टीचर, the dance teacher once told me that Muskan, you come in between this whatever song they were preparing, and he told me to stand in the center, like to dance in the center of that group. And जो लड़की थी, she always used to be in center. and फिर वहाँ मेरी जगह मिल गई, तभी तो उसकी बहुत जली थी. बट देन एवरीथिंग वॉज प्रिपेयर्ड. फिर एक टाइम था टीचर्स डे का. So at that time they created a group without me and did that dance. मैंने उन लोगों से पूछा भी कि is this something you are doing or something like that, and but मैंने उतना नहीं पूछा क्योंकि as I said I was pretty insecure, I was underconfident, and people when they used to laugh at my appearance like मुस्कान तुम ऐसे क्यों किए रहती हो. I used to say हाँ ओके यार ऐसे ही कर लेती हूँ and all. तब मैं उतना बोलती नहीं थी, मतलब बोलती थी लेकिन वैसे नहीं कि कोई मुझे ऐसा मजाक उड़ा रहा है तो मैं बोल दूँ. सो देन जब टीचर्स डे हुआ मैं गई एंड आई सॉ समथिंग. You guys guessed it right. They did that dance without me. And सेंटर में जिनका भी था वो वहाँ पे. एंड आई वॉज सो शॉक्ड एट दैट टाइम. डूड, मैंने उसे प्रिपेयर करा था, सब कुछ करा था, मैंने इतनी मेहनत करी थी एंड यू गाइज टुक दैट. फिर मैंने कुछ नहीं कहा. फिर
वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की एंड दैट वाज अ वेरी 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 टॉक्सिक स्कूल. मुझे तो मन करता है मैं नाम ले लूँ सबका, बट देन अगेन आई डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस अब किसी को. सो that incident changed me, like not totally changed me but gave me something in me that कि मैं आगे चल के उसके बारे में सोचूं और उस चीज़ को लेके मैं खुद को चेंज करूं. फिर 2 साल मैं उस स्कूल में रही, बहुत ही ज़्यादा बुली हुई एंड ऑल, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला. तो फिर उसके बाद इन क्लास 7th आई डिसाइडेड टू चेंज माई स्कूल अगेन. सो देन आई वेंट अनदर स्कूल when I was in 8th standard, and that time I was not that pretty. I am pretty, I was pretty, but in my mind I was not pretty. You know what I mean, that people, girls, you're thinking that you're not pretty. Do not think that. Elevate your looks, elevate yourself. People will already seeing you the way you are, the way you will show yourself. They will see that only, not something that you are not showing. In your mind you are a not so pretty underconfident girl, they will do the same. आप जो बोलोगे कि नहीं मैं तो नहीं अच्छी दिख रही, मेरे से नहीं होता, तो वो भी आपको बुली करेंगे, वो और आपको आपके बारे में बोलेंगे. Take the control of yourself in your hands. Take the control of your life in your hands. वो सब हो गया, मेरे दिमाग में वो चीज़ें छप चुकी थी. एंड इन 8th स्टैंडर्ड में आई, मुझे थोड़े दोस्त मिले. मेरे लाइफ में दोस्त आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रुकते कोई नहीं है. अभी मिल गए हैं रुकने वाले. तभी मैं कुछ नहीं, जब भी बोलती थी कुछ भी नहीं करती थी, पढ़ने में तो ठीक ही थी, बट वो सब ना मेरे मेंटली मुझे इतना परेशान कर देते थे. मेरी पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी जा रही थी धीरे धीरे. तो 8th में मैं आई वापस एंड मुझे कुछ लोग मिले. दे वर प्रिटी टॉक्सिक ऑल्सो, एक्सेप्ट वन ऑफ माई फ्रेंड. ही इज़ स्टिल माई फ्रेंड एंड आगे भी ही विल बी माई फ्रेंड. सो वहाँ पे मैं 1-2 फ्रेंड से बात करती थी. दे वर गुड बट दे वर प्रिटी नेगेटिव. मुझे थोड़ा सा सराउंडिंग में नेगेटिव लोग ज़्यादा मिले हैं अभी तक. फिर मैंने वहाँ 8th 9th 10th पढ़ाई की एंड फिर वहाँ पे जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, वहाँ वो चीज़ जो पहले हो चुकी थी वो मेरे दिमाग में छप चुकी थी. तो मैंने उससे ओवरकम किया. मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दी, स्कूल्स में ही करा. डांस स्टार्ट कर दिया प्रॉपर. मिड में मुझे होना था तो मैं मिड, मतलब सेंटर में मुझे होना था तो मैं सेंटर में ही होती थी. एंड मुझे जिधर भी होना था मैं उधर ही होती थी. लड़ाई झगड़ा में तभी भी मैं नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा थोड़ा नहीं पसंद है. एंड फ्रेंडशिप भी तब तक मेरी टॉक्सिक थी, बट मैं थोड़ी सी बेटर हो रही थी. एंड अपीयरेंस तब भी नॉर्मल थी, मैं उतना स्टाइल पे ध्यान नहीं देती थी बट उतना कर नहीं पाती थी. वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई भी सही करी, मैंने अपने आप को भी सही करा. मैं पूरे लोगों के सामने कुछ भी बोल सकती थी. जब भी कुछ इवेंट होता था, प्रिंसिपल यूज्ड टू कॉल मी, डायरेक्टर यूज्ड टू कॉल मी टू एंकर, एंड दैट वाज अ प्रिटी बिग अचीवमेंट फॉर समवन जिसको इतना डर लगता था भीड़ में बोलने में या किसी के सामने कुछ बोलने में. एंड आई फील्स प्रिटी गुड. उस 3 साल में मैंने अपने आप को उतना चेंज कर दिया, कॉन्फिडेंट बन गई एटलीस्ट इतना कि लोगों के सामने बोल पाऊँ. ओके, सो फिर मैं उस स्कूल से 10th करके गई 11th 12th किसी और स्कूल में करने, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस वाले क्लासेस नहीं चलते थे, बट 11th 12th था तो मुझे स्कूल जाने वाले क्लासेस चाहिए थे. तो मैं उधर दूसरे स्कूल में आ गई. वहाँ भी मेरे एक फ्रेंड बने, और भी फ्रेंड थे, बट फिर वो लोग बहुत टॉक्सिक थे तो मैं उनसे मेरी बात होना बंद हो गई. 11th 12th में मुझे कुछ खास फ्रेंड नहीं मिले. बट इन 2021 लॉकडाउन आई गॉट इनटू मेकअप एंड दैट changed my appearance, my confidence, my vocabulary, my speaking skills, everything. And in 11th 12th also I used to read novel. In 12th basically I used to read novel. I have like read 5 novels, Twisted series, and It Ends With Us series. There are 5 novels. I have properly read it all, and that also made my vocabulary good. So you
हैव टू लाइक, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा पहले, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरे भी आपको उस नज़र से देखें. अगर आप अपने को खुद को ही उस नज़र से नहीं देख रहे हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि आपको उस नज़र से देखा जाएगा. सो आफ्टर गेटिंग इन टू मेकअप आई गॉट इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन. आई मेड माई इंस्टाग्राम. देन मैंने मेकअप सीखा, सर्टिफाइड हुई. आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट नाउ, एज यू गाइज नो. फिर मैं तब से 2021 से मेकअप वीडियोस बना रही थी इंस्टाग्राम पे. बस यूट्यूब पे मैं 2 साल पहले आई हूँ. तो फिर वहाँ वो एक पेज था जो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ, बट वो किसी कारण बंद हो गया था. तो फिर मैंने सेकंड पेज बनाया जो कि अभी ये है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो. एंड फिर मैंने 2 साल पहले यूट्यूब बनाया. बहुत बारी लोगों ने मुझे कहा कि मत करो, एंड कभी मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है टू गिव अप, बट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग. ओके, सो अभी 12th कंप्लीट हो गया, मैं अभी भी कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. देन आई वेंट टू माई कॉलेज. 12th में मेरा एक फ्रेंड बना था जो कि मेरा भाई जैसा है, भाई जैसा अभी भी है. तो घर में भी उसके बारे में मैंने मोस्टली सबको बता रखा है. घर में भी वो आया था. सब मेरे घर में पहले बॉयज़ अलाउड नहीं है, तो वो आया था. इट्स अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज ही वॉज माई ब्रदर ऑफ कोर्स. देन फर्स्ट ईयर में मेरी एक दोस्त बनी कॉलेज में. मुझे लगा था मेरे कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक कोई नहीं बने, तो अब आगे भी कोई भी नहीं बनेंगे ऑफ कोर्स. और कॉलेज में तो और ही सांप बैठे रहते हैं. सो आई वेंट टू कॉलेज, आई मेड अ फ्रेंड एंड शी इज स्टिल माई फ्रेंड. 3 years हो चुके हैं ऑफ कोर्स. टचवुड, नजर मत लगाना. सो अब बारी आती है टॉक्सिक लोगों की कट करने की. तो मैंने सभी को ब्लॉक कर दिया जो भी टॉक्सिक थे. एंड फर्स्ट ईयर की 1 साल बीत गया. कुछ दिन बाद माई फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई वोंट टेक द नेम, जो 12th में बना था, माई ब्रदर आई वुड से, he stopped talking to me. He blocked me basically. And you know why? Because he has someone in his life who was insecure about me. Who can be insecure about me? I mean, yes, they can be. And when I say toxic people, I say people around me. They're so toxic. Like toxic, negative, toxic, and people who don't have goal in life will judge others. That's it. मैं अपना फिज़िकल अपीयरेंस को मैंने काफ़ी बेहतर कर लिया. मैंने अपने मेंटल कॉन्फिडेंट सब कुछ बेटर कर लिया. मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कर लिया. एंड आई यूज टू से पीपल दैट डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी, नॉट ऑन फाइनेंशियल बेसिस, ऑफ कोर्स इमोशनली, डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी. बट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ आई फील डम. लाइक आई फील डम कि मैंने क्यों ही बोला. Who are they? I am here to pamper myself. I have everything to pamper myself. So why I am saying that to them? Okay, so what I was saying that, okay, he blocked me, and after some days he said this, that, then I blocked him. फिर 6-7 महीने बाद हमारी वापस बात स्टार्ट हो गई. He came to me and said things, and now we are in good terms, but of course not the same bond. एंड अभी वो वापस चला भी जाए तो गुड फॉर यू, गुड फॉर मी. आई एम टोटली ओके विथ लूजिंग पीपल नाउ. आई एम टोटली ओके, एक्सेप्ट आई हैव अ फ्रेंड राइट नाउ, Shruti. You guys must have seen it if you are already a subscriber. So yeah, she is my friend, kind of like a sister. So वो है अभी लाइफ में बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है. इतने टाइम में कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड, अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप क्या होती है वो उधर ही से पता चली है. और भी मेरे 2-3 दोस्त हैं जो कि टॉक्सिक नहीं है, एम्बिशियस है, काम कर रहे हैं सब अपना अपना. 2-4 दोस्त हैं, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी. दे आर माई फ्रेंड्स. दे आर 2 of them आर इन एयरलाइंस इंडस्ट्री. एंड अभी मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो अभी पढ़ाई ख़त्म करके एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे. And yeah, I have people around me who loves me. That's it. That's how you have to cut off people who do not appreciate you, who don't love you, who bully you, who are toxic. And the scariest part, they will make you feel that it's normal. Bullying, it's normal. No, it's not. It is not normal. People saying you mean things and making that normal, girl, run from that toxic relationship. Not only boyfriend girlfriend relationship, friendship, family relationship, cut them off. Just
for your own mental peace, and stop asking for validation. I used to ask for validation to people, like, she's not complimenting me, do I look good? He is not complimenting me, do I look good? I look freaking gorgeous. And you guys are seeing me now, confident, knows how to talk, doesn't give any fucks to anyone. I don't care that what you are thinking. I am still surrounded. They are not my friends, but there are people who hate me, and I said I don't care. I am earning for myself. I am uplifting myself, and I am doing everything to make myself better. I am okay with that. You are nobody to judge me. I might judge you for the way you are judging me, but you are nobody to judge me. So please. And even if you are, keep judging. Just keep judging. So yeah, that's it for today, I think. And I hope you guys liked this video, because it's a pretty personal video. And also, I hope you guys like this video, and people, girls who are asking for validation, who are insecure, who are not ready to speak in public, who are not ready to be who you are, do it for yourself. Nobody is going to do it for you. You have to do it for you, and cut off freaking toxic people in your life. So yeah, I hope you guys like this video. Thodi lambi hogi ye video, but then again, this is a personal, very close to my heart video. So yeah, do like, share and comment on this video. Also, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you won't miss any update. Till then, bye bye, stay safe. I love you girlies. Bye bye.